بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید اہم خبروں کی جانب۔ شہر حیدرآباد میں کل سے اپنی ہی نوعیت کے ایک منفرد جوڈو مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ان مقابلوں میں بلائنڈ، جی ہاں نابینا کھلاڑی اپنی جوڈو صلاحیتوں کا مظاہرہ پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں دیکھیے یہ تفصیلی رپورٹ۔ بلائنڈ یعنی نابینا کھلاڑیوں کے لیے 2 روزہ 8ویں قومی جوڈو چیمپئن شپ کا کل 2 نومبر سے حیدرآباد کے ایل بی اسٹیڈیم میں انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ تلنگانہ جوڈو ایسوسی ایشن اور انڈین بلائنڈ پیرا جوڈو ایسوسی ایشن کے اشتراک سے یہ مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ان مقابلوں میں جونیئر اور سینئر لیول کے مقابلے ہوں گے، جس میں بلائنڈ کھلاڑی اپنی جوڈو کے جوہر دکھائیں گے۔ انڈین بلائنڈ پیرا جوڈو ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری منور انصار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پچھلے 10 سال سے ان کی ایسوسی ایشن بلائنڈ اور ڈیف بچوں پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان مقابلوں میں کامن ویلتھ گیمز میں میڈل حاصل کرنے والے کھلاڑی بھی شرکت کرتے ہوئے بلائنڈ اینڈ ڈیف کھلاڑیوں کو ٹیکنیکس بتائیں گے۔ ان مقابلوں کے انعقاد کے لیے انہوں نے تلنگانہ جوڈو ایسوسی ایشن کے صدر اور سیکریٹری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ریاستی اور مرکزی حکومت سے بھی ایسے بلائنڈ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات کرنے کی اپیل کی۔ اس ٹورنامنٹ کی جو سب سے بڑی بات ہے، آپ 2 دنوں میں یہاں دیکھیے گا کہ جو لاسٹ کامن ویلتھ چیمپئن شپ ابھی یو کے میں پچھلے ماہ ہوئی تھی، جس میں انڈیا کو 19 میڈل ملے تھے، وہ لوگ بھی یہاں موجود رہیں گے۔ وہ اپنی جو ہے ٹیکنیکس دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ اولمپک پیرالمپک جو ہونے جا رہے ہیں ٹوکیو میں 2020 سپتمبر میں، اس کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈز میں جو کھلاڑی ہمارے کھیل رہے ہیں، ہمیں پوری امید ہے کہ 2 سے 3 کھلاڑی ہمارے پیرالمپک جاپان میں جائیں گے، تو وہ یہاں پر کھیلنے کو ملیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ بہت دلچسپ مقابلے ہوں گے۔ پہلا ایسا موقع ہے جبکہ نیشنل لیول پہ بلائنڈ بچے یہاں پر اپنا پروگرام، اپنے جوہر دکھانے والے ہیں آپ لوگ کے سامنے۔ سکندرآباد کے مارٹ پلی میں واقع دہلی پبلک اسکول میں آگ لگنے سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے شعور بیداری کے لیے موک ڈرل پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں فائر ڈپارٹمنٹ کے عملے نے شرکت کرتے ہوئے اسکولی طلباء کو آگ سے حفاظت اور روک تھام کے اقدامات کی جانکاری دی۔ اس سلسلے میں دیکھیے یہ پیش رپورٹ۔ مارٹ پلی میں واقع دلی پبلک اسکول میں منعقدہ موک ڈرل میں بچوں کو بتایا گیا کہ آگ سے بچنے کے لیے گھروں سمیت دفاتر اور تعلیمی اداروں میں اسموک ڈیٹیکٹر لگانا ضروری ہے، کیونکہ حادثات سے پہلے ہی حفاظتی اقدامات کرنا ضروری ہے۔ آگ لگنے کی صورت میں خواتین، بزرگ اور بچوں کو سب سے پہلے محفوظ مقام پر منتقل کرتے ہوئے 101 نمبر پر کال کر کے حادثے کی جانکاری فائر ڈپارٹمنٹ کو دینی چاہیے، اور اونچی عمارتوں میں آگ لگنے کی صورت میں لفٹ کا استعمال کرنے کے بجائے سیڑھیوں سے اترنا چاہیے۔ اس موقع پر فائر ڈپارٹمنٹ کے عملے نے آگ لگنے کے بعد اسے بجھانے کے مختلف طریقوں کا لائیو مظاہرہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ گھروں میں کچن کا کام ختم ہونے کے بعد گیس کا ریگولیٹر ضرور بند کریں۔ گیس لیک ہونے پر سلنڈر کو آنگن یا کھلے مقام پر رکھ دیں، اور اگر اس میں آگ لگ جائے تو مٹی یا گیلے کپڑے سے سلنڈر کو لپیٹ کر آگ بجھائی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر فائر ڈپارٹمنٹ کے عملے نے بتایا کہ آگ بجھانے کے آلات اور ساز و سامان کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آگ الیکٹرک سامان پر لگ جائے تو پانی کا استعمال کیے بغیر مٹی یا ریت سے آگ بجھانا چاہیے۔ اس موقع پر فائر ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ اسکولی انتظامیہ اور تقریباً 1000 طلباء موجود تھے۔ بیورو رپورٹ، بی بی این نیوز۔ حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں مسافروں کی تلاشی کے لیے باڈی اسکینر مشین لگائی گئی ہے۔ بیورو آف سول ایویشن یعنی BCAA
FAAS की हिदायत पर लगाई गई इस बॉडी स्कैनर मशीन का तजुर्बा 3 माह से किया जा रहा है। एयरपोर्ट की इंतजामी कंपनी GMR ने बताया कि इसे तजुर्बाती तौर पर डोमेस्टिक रवानगी टर्मिनल में लगाया गया था। इसकी जांच 12 अक्टूबर से हो रही है। अगर ये तजुर्बात कामयाब हो जाते हैं और तमाम इजाजतनामे मिल जाते हैं तो ये स्कैनर दूसरे टर्मिनल्स पर लगाए जाएंगे। GMR ने आगे कहा कि राजदारी से मुताल्लिक कोई खदशात नहीं होंगे क्योंकि वो सेफ सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए काम करता है। उन्होंने बताया कि बॉडी स्कैनर चेक लाजमी नहीं है बल्कि रज़ाकाराना है। कदीम तांडूर के इलाके में एक पुराने घर को तोड़ने के दौरान आसिफिया दौर के नायाब 669 चांदी के सिक्कों को आपस में तकसीम करने वाले 10 अफराद के खिलाफ तांडूर पुलिस ने इंडियन ट्रेजरी ट्रू एक्ट के दफात 20 और 21 के तहत केस दर्ज कर लिया है और इस दफीने में दस्तयाब सिक्कों को जब्त भी कर लिया गया। DSP तांडूर लक्ष्मी नारायणा ने इस सिलसिले में सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस तांडूर रवि कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कदीम तांडूर के साकिन नारा नरेंद्र रेड्डी ने अपना कदीम मकाम कय्यूम मोइज और पाशा मियाँ को फरोख्त कर दिया था। ये लोग इस कदीम मकान को मुनहदम करने के कामों में मसरूफ थे कि इसी दौरान उन्हें मकान के एक दीवार से मिट्टी के रंजन में मौजूद चांदी के सिक्के दस्तयाब हुए, जिस पर मकान फरोख्त करने वाले, मकान खरीदने वाले, JCB मशीन मालिक और इसके ड्राइवर ने आपस में इन सिक्कों की तकसीम कर लेने का मंसूबा बनाया। ताहम मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने चांदी के सिक्कों को जब्त करते हुए अपनी तहवील में ले लिया। DSP ने कहा कि इस दफीने से मुताल्लिक मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। इस्लामी तालीमात से दूरी माशरे के बिगड़ने की अहम वजह है, फिर चाहे वो अज़वाजी ज़िंदगी ही क्यों ना हो। शहर हैदराबाद में छोटी सी बात पर एक शोहर ने बीवी को तलाक दे दी। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में रौनुमा एक अजीबोगरीब वाक़ये में दांत ऊंचे होने की शिकायत करते हुए शौहर ने बीवी को तलाक दे दी। तफसीलात के मुताबिक खुशाईगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तफ़ा नामी शख्स की शादी 3 महीने पहले रुखसाना बेगम से करार पाई थी। खातून का कहना है कि उसके शौहर और ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से जहेज के लिए उसे मुसलसल हरासा किया जा रहा था, जबकि दांत ऊंचे होने की शिकायत करते हुए शौहर ने उसे तलाक दे दी। खातून ने अपने रिश्तेदारों के साथ खुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मजीद जहेज के लिए हरासानी का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। एक तरफ जहां RTC मुलाजमीन की हड़ताल जारी है, वहीं आए दिन आरजी बस ड्राइवरों की लापरवाही की वजह से सड़क हादसात की खबरें करीब करीब रोज ही सामने आती जा रही हैं। ताज़ा वाकया शादनगर में पेश आया, जहां एक RTC बस ने एक कार को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से कार का सामने का हिस्सा तबाह हो गया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। मुकामी लोगों ने बस ड्राइवर पर बरहमी का इजहार किया है। बाद ट्रैफिक पुलिस ने बस और कार को रास्ते से हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी। भोलकपुर मुशीराबाद में वाक़े स्टार होटल के मालिक इब्राहिम ने उबेर से वाबस्ता एक डिलीवरी बॉय पर हमले करते हुए इसे शदीद ज़द-ओ-क़ूब किया है। इस हमले में डिलीवरी बॉय के चेहरे पर चोट के शदीद जख्म आए हैं। इस सिलसिले में मुतासरा डिलीवरी बॉय का कहना है कि उसे 12:30 बजे होटल से डिलीवरी लेना था, ताहम नमाज की अदायगी के बाद देर से होटल पहुंचा। डिलीवरी के लिए पूछने पर उसे इंतजार करने के लिए कहा गया, ताहम मुतासरा नौजवान के ज्यादा इसरार करने पर होटल मालिक से उसकी बहस हो गई, जिसके बाद शदीद गुस्से में होटल मालिक ने डिलीवरी बॉय को पीटना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में मुतासरा नौजवान ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। मेरा नाम मोहम्मद मकसूद है। मैं उबर ईट्स डिलीवरी पार्टनर में 1 साल से काम कर रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा हो जाऊँ। मेरे को जो है स्टार होटल से जो है ऑर्डर पिकअप करने के लिए नोटिफिकेशन आया था आपसे, तो मैं स्टार होटल में ऑर्डर पिकअप करने के लिए गया था। टाइम जो है 12 से 12:10 के बीच में था। तो होटल वाले ओनर कोई भी नहीं थे, खाली होटल का स्टाफ ही था। और होटल के स्टाफ को जाके देखा, मैं पूछा तो वहाँ पर बिरयानी का अंडी रेडी नहीं था।
होटल के स्टाफ को पूछा तो 1 बजे से पहले नहीं मिलता है, 1 बजे 1 बजता टाइम आपको ऑर्डर मिलने पर बोल के बोले। तो मैं सपोर्ट टीम से बात करा, मैं 3 से 4 बार हेल्प के लिए, तो वेट करने के लिए बोले मेरे सपोर्ट टीम वाले। तो मैं नमाज़ का टाइम हो रहा, तो नमाज़ पे जाके नमाज़ पढ़ लेके वापस आके मैं बोला, फिर होटल का स्टाफ आ गया था, ओनर आ गया था, उनको बोला मेरे को 1.5 घंटा और अभी ऑर्डर दो मेरा बोले, तो और आधा घंटा टाइम लगता बोल के बोले। हालांकि वहाँ अंडी रेडी है, सब रेडी है। मेरे ऐप में नोटिफिकेशन में टाइम नहीं बताता मेरे को, ऑर्डर कब एक्सेप्ट किया था मैं। तो मैं भी मेरे सपोर्ट टीम से बात करके उनको टाइम बता रहा था, तो टाइम बता रहा हूँ बोलते जो है मेरे हाथ में कवर दे रहे बाबू, दूसरों को कवर दे के भिजा दिए, जा तेरे को जा ऑर्डर नहीं है तो बोल के बदतमीजी से पेश आए, मेरे को मारना शुरू कर दिया। मार के मेरे हाथ, किससे मारा? हाथों से ही मारा, यहाँ पे मारा सो भी, और घूसा बना के मारा मेरे। कोई हथियार वगैरह यूज़ करा? अब मेरे को याद भी नहीं है, पूरा पब्लिक भी जमा हो जाता। मेरे साथ वाले जो है पुलिस स्टेशन को लेके आ गए काम करने वाले, तो यहाँ पर आके मैंने कंप्लेंट किया। और ये इंसिडेंट का जो है टाइम 1:40 का है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए पुलिस वाले, और क्या एक्शन लेंगे तो मालूम भी नहीं हो रहा हूँ। खाली कंप्लेंट लिख लिए, बड़े साहब का इंतजार करके तो बैठे हैं खाने। सिकंदराबाद के पारसी गुट्टा एक्स रोड पर खुल रही नई शराब की दुकान की मुखालफत में मुकामी लोगों ने एतराज़ जाहिर करते हुए एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाजियों ने इलाके में शराब की दुकान खुलने की मुखालफत करते हुए नारेबाजी भी की। इन एहतजाजियों में ख़वातीन भी शामिल थी। इस दौरान दुकान के जिम्मेदारों और एहतजाजियों के दरमियान हुई झड़प में एक बुजुर्ग खातून के सर पर चोट लगने से वो जख्मी हो गई। वाक़े की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई का मुकामी लोगों को तयक़ुन दिया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इस माह नवंबर की पहली ही तारीख को आम आदमी को लगा झटका। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 76 रुपए का हुआ इजाफा। हमारी पॉलिसियों को दूसरी रियासतें लागू करने के लिए है तैयार। ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क के इनॉग्रेशन के मौके पर केटीआर ने किया दावा। बाबरी मस्जिद पर मुतवक्किफ फैसले के पेश नजर हिंदू लीडरों की डीजीपी से मुलाकात। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों समेत कई अजला में सिक्योरिटी सख्त करने की अपील। एक और आरटीसी ड्राइवर ने परेशानी में की खुदकुशी की कोशिश। मुतासिरा खानदान से अपोजिशन लीडरों की मुलाकात, हर मुमकिन मदद का किया वादा। और एक अनोखी वजह पर हैदराबाद के एक शख्स ने बीवी को दी तलाक। माशरती बिगाड़ में इजाफा तशवीशनाक। और आरजी आरटीसी ड्राइवरों की बढ़ती जा रही हैं गलतियां। आवाम की जान खतरे में, शादनगर में एक और हादसा। ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। अहम और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए भी देखते रहें बीबीएन चैनल। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिलहाल मुझे दें इजाजत। खुदा हाफिज।